Okay. Up to which portion we have completed yesterday? Up to which portion we have completed? Can anybody tell me what we have seen in the last lecture? See, until unless you are not able to tell me, it's not very difficult for me to go. Whether you have understood the previous one, whether you know the topic of the previous bit which we have covered earlier. I'm not able to move next. In the last lecture, what we have seen the token ring and token ring mechanism and the difference between different types of IEEE standardizations given to the Ethernet, token bus and token ring. Clear? So yesterday we have seen. Today we are going to cover 2 points. That is your ARP and RARP. Actually these 2 points are combinedly we can know is known as address mapping. ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? Address mapping. Clear? So as you know about this is a different point given in the syllabus, but actually as a 2 points are comes under a common big point that is known as address mapping. Clear? So normally you know that while transferring the frames from one side to the another side, it requires two types of addresses, that is physical as well as logical address. Physical means what do you mean by physical? It is your MAC address. And what is the meaning of the logical? Logical means IP address. Clear? So this is the two things you should keep. You should remember these two things. So while delivering the packet from one side to the other side, or from sender to the receiver, or from receiver to the sender, we require two types of addresses. It is necessary. That is physical address, which is the system's physical address, as well as system's IP address. Okay, it may be a host, it may be routers, it may be a server, anything. Clear? Whoever present in the network is involved in transmitting the frames. Clear? So now, as we'll know that in the physical layer, it requires, or in the data link layer, it is necessary you should know about the physical address of the each and every system. Sometimes what will happen when a station wants to transmit a packet from one side to another side, sometimes it may happen the other side, whoever is sending the packet, they don't know the MAC address or IP address of its or the destination, because until unless server, or until unless source or destination is not knowing about the IP address or MAC address of the destination, it is very difficult to send the packets to the other side. Clear? So that is a ARP. So ARP, what it means? Let's see. And this mapping we normally do. So find out the IP address. What is the IP address of the other station, and what is the MAC address of the other station? That is known as mapping. ठीक है, तो मैपिंग हम क्या बोलते हैं? टू फाइंड आउट दी फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द स्टेशन, इट इज नोन एज एड्रेस मैपिंग. क्लियर? नाउ whatever I have explained just now, it is written here. The first point under this, it is your address resolution protocol. So address resolution protocol पे क्या होता है? I'll explain you. I'll show you one diagram. So this is your address resolution protocol. Clear? Just take an example here. There's one system A. In between there's a router and there's a system B. Clear? So what will happen? Now system A, every system, every stations, every host, every routers has a cache table. Cache मतलब क्या होता है? Memory table they have. तो उस memory table पे क्या होता है? Whenever a system and whenever a station interact with the other system, they save the IP address and MAC address of his as well as the other stations also. जब भी आप एक बार भी अगर आप इंटरेक्ट करते हो, साथ ही साथ आपका आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस हर जितने भी नेटवर्क पे जितने भी नेटवर्क पे स्टेशंस होते हैं, इट में भी राउटर, इट में भी सर्वर, इट में भी स्टेशंस, इट में भी होस्ट, सबके पास एक मेमोरी रहता है जहाँ पे हर उस नेटवर्क पे जितने भी स्टेशन है सबका आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस सेव होता है जब अगर आपने एक बार भी किसी के साथ इंटरेक्शन किया हो. क्लियर? सो व्हाट हैपन इन द केस ऑफ एआरपी? एआरपी में क्या रहता है? वी नो द आईपी एड्रेस
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सिस्टम ए वांट्स टू ट्रांसमिट अ पैकेट फ्रेम टू द सिस्टम बी, बट इट नोस, सिस्टम ए नोस द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम बी, बट इट डजंट नो द मैक एड्रेस ऑफ योर सिस्टम बी। यहाँ पे क्या बताया मैंने, system A wants to transmit a data to the system B, but it knows only the IP address, but it does not know the MAC address of the system B, because मैंने क्या बोला है, फिजिकल एड्रेस, डेटा लिंक एड्रेस पे मैक एड्रेस रिक्वायर्ड है एंड नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस इज मस्ट, ठीक है। बट while delivering the packet from one side to the other side, it requires the both the addresses, clear। तो ARP का क्या होता है, मैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस विद द मैक एड्रेस। क्या बताया मैंने, मैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस विद, यहाँ पे ARP का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। ARP का डेफिनेशन मैंने क्या बताया यहाँ पे, जस्ट सी here I have written here कि it has the logical address of the, यहाँ पे क्या रहता है आपका, you know the logical address of the that is sender a destination, but you doesn't know the MAC address of the destination, clear। अभी क्या होता है, just see यहाँ पे क्या है कि system A wants to transmit a data to the system B, तो ये क्या करेगा, बट वो जो अपना कैशे मेमोरी टेबल देखेगा वहां पे देखेगा क्या, अरे आई हैव आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम बी बट आई डिडंट नो द मैक एड्रेस ऑफ इट, तो क्या करेगा, इट सेंड अ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में क्या मैसेज रहती है, रिक्वेस्ट में ये मैसेज रहेगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो लिखा हुआ है यहाँ पे रिक्वेस्ट में, जो रिक्वेस्ट मैसेज है उस पैकेट पे क्या रहेगा कि सी सिस्टम बी को वो क्या लिखा जाएगा कि सी आई नो द आईपी एड्रेस ऑफ दिस ऑफ वन ऑफ द स्टेशन, बट आई डोंट नो कि ये आईपी एड्रेस कौन से स्टेशन का है, आई डोंट नो द बैक एड्रेस ऑफ दिस आईपी एड्रेस, क्लियर। बिकॉज क्या है, जब सिस्टम ट्रांसमिट करता है वो ये भी बताता है कि आई एम ए सिस्टम ए, because in a station, in a network multiple stations are there, so station A B C D multiple are there, ठीक है। जब आप ट्रांसमिट करते हो आप ये बताते हो कि, अब जब एक पैकेट ट्रांसमिट करते हो आप ये भी बताते हो कि पैकेट कहाँ से आया है, ठीक है, ए से आया है, सी से आया है, बी डी से आया है, कहाँ से आया है। तो जब सिस्टम ए ट्रांसमिट करेगा एक रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करते हुआ तो क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा कि आई नो द आईपी एड्रेस ऑफ वन ऑफ द स्टेशन, बट आई डोंट नो ये किसका है, ठीक है, ये किसका है, उसके लिए मुझे मैक एड्रेस चाहिए उस स्टेशन का, ठीक है। अब कैसा है, बिकॉज सिस्टम को पता नहीं है कि, बिकॉज देयर इज राउटर्स और देयर राउटर का भी हो सकता है, सर्वर का भी हो सकता है, स्टेशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टम ए क्या करता है, जब वो रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करता है तो वो रिक्वेस्ट किस मोड पे जाता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है, बिकॉज ही डोंट नो अबाउट दी, बिकॉज इट डोंट नो अबाउट दी किसका है, तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट मीन्स व्हाट, सेंड टू एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जस्ट सी ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट। जब भी रिक्वेस्ट ट्रांसमिट होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट, वो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है टू सेंड टू एवरीवन, ठीक है। बट नाउ अभी वो क्या, जब वो ब्रॉडकास्ट हुआ, वो जो भी रिक्वेस्ट जब ब्रॉडकास्ट हुआ, वो रिक्वेस्ट का रिप्लाई कौन दे सकता है, ओनली, बिकॉज क्या है, आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे 3 राउटर है, ठीक है, बीच में आप देखिए कोई इंटरमीडिएट नोड्स आर देयर, ठीक है, 3 इंटरमीडिएट नोड्स आर देयर। ये 3 इंटरमीडिएट नोड्स अभी जब इन्होंने देखा, इन लोगों को भी जब आता है ये मैसेज, ये रिक्वेस्ट आया, इट इज बिकॉज दे नो देयर आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, वो क्या करेगा, देखेगा अरे इट इज नॉट माई आईपी एड्रेस, तो इट इज मूव टू द नेक्स्ट, नो इट इज नॉट माइन, इट इज नॉट माइन। नाउ व्हेन इट reaches to the system B, वो क्या करेगा, ओके दिस इज माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, ओके इट इज दिस मैसेज। तो उसमें क्योंकि क्या है, जो रिक्वेस्ट गया था उस रिक्वेस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि वो किसको चाहिए, बिकॉज सिस्टम बी को ट्रांसमिट करना है ना, रिप्लाई करना है, तो सिस्टम बी को जब रिप्लाई करना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट किससे आया है, क्लियर। तो जो पैकेट रिक्वेस्ट जाता है उस रिक्वेस्ट में ये भी दिया रहता है कि वो किससे आया है, ए से आया है, सी से आया है, डी से आया है, किससे आया है, क्लियर। तो वहां पे ये भी दिया होता है कि दिस इज कम्स फ्रॉम दी ए, ठीक है, कहाँ से आया है, ए से आया है। सो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जब उसको देखा क्या दिस इज माई आईपी एड्रेस, तो क्या करेगा, सेंड रिप्लाई टू डायरेक्टली टू दी ए। सो याद रखना, वेन एवर अ रिप्लाई सेंड by the station to the other station, it is a unicast type of, unicast क्यों, जिसको चाहिए उसी को जाता है, ना कि वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता किसी को, समझ में आया।
अगर आपको कोई चीज पता नहीं है, आप ब्रॉडकास्ट करते हो, तो ये हो गया एआरपी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो कि मुझे नहीं पता किसका है, तो अब मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसका होगा मुझे रिप्लाई करेगा। अब रिप्लाई कौन कर सकता है? जिसका है आईपी एड्रेस। तो सिस्टम बी नोस इस आईपी एड्रेस, तो उसको पता लगा कि अरे सिस्टम ए को नहीं पता माई फिजिकल एड्रेस, वो क्या करेगा? डायरेक्टली ट्रांसमिट करेगा सिस्टम ए को, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई एआरपी रिप्लाई इट इज अ यूनिकास्ट टाइप मोड ऑफ कम्युनिकेशन। Clear? Any query? Any query? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay. Now, I hope you have understood, because only I got the answer from only one or two students, from only one and two students, and so I hope you have understood my whatever I have discussed just now. Clear? तो ये हो गया है प्रोसीजर ऑफ, इट इज द प्रोसीजर ऑफ योर एआरपी ऑपरेशन। क्लियर? क्या बताया मैंने एआरपी ऑपरेशन पे? अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस हमें पता होता है, मैक एड्रेस सिस्टम डेस्टिनेशन को पता नहीं होता। जब आप रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करते हो, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट करते हो, एंड जब रिप्लाई होता है, तो रिप्लाई के बाद इट इज द कम्युनिकेशन, इट इज अ यूनिकास्ट, वन टू वन, नॉट टू ऑल। Clear? So this is a ARP operation. Now do one thing, you just draw this diagram. You just draw this diagram. Write it down, ARP operation. Draw this diagram. After drawing, you just write down somewhere ARP का definition, mapping of IP address to the MAC address. Mapping of IP address to the MAC address. IP का पता है, हमें MAC find out करना है. ओके, एक एरो ड्रॉ कीजिएगा सिस्टम में का, यहाँ पे जब रिक्वेस्ट का जो लाइन है, यहाँ पे एरो ड्रॉ कीजिए कि रिक्वेस्ट किस कहाँ से जा रहा है। सिस्टम ए से आ रहा है, तो यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कीजिए आप। यहाँ पे सिस्टम ए का जो लाइन है, रिक्वेस्ट एंड सिस्टम ए का बीच में जो लाइन है, उसको एरो एरो एक ड्रॉ कीजिए, और सिस्टम बी से जो रिप्लाई का जो एक लाइन है बीच का, इस पे उल्टा ड्रॉ कीजिएगा। मतलब ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रही है, बी से आ रही है?
Completed, everyone? Completed? Completed? Why only 28 students joined? I think others are not interested. Okay, next. So, our next is the पैकेट फॉर्मेट. ठीक है, क्या है अभी हमारा नेक्स्ट? ARP पैकेट फॉर्मेट. ठीक है, फर्स्ट यू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. फर्स्ट यू ड्रॉ दिस डायग्राम. पैकेट फॉर्मेट. Shraddha Depal, what happened to you? Over, everyone? Over? Over, everyone? Okay, see here, this is the packet format, ARP packet format, which of having 32 bit. कितने bit का है ये? 32 bit का है. Clear? Now, while transmitting the ARP packet, तो it carries so many things. ARP packet जब आप transmit करते हो, तो it carries this much things. ठीक है? तो वो ARP packet क्या है? ARP packet पे क्या है? सबसे पहला क्या आपका, अगर आप देख रहे हो, हार्डवेयर टाइप. तो हार्डवेयर टाइप जो है, एक्चुअली इट इज 16 बिट फील्ड. ठीक है, ये कितने का है? 16 बिट फील्ड है ये. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 8 बिट, 8 बिट, 16 बिट. ठीक है, तो ये कितने बिट का हुआ आपका? हार्डवेयर टाइप इट इज ऑफ 16 बिट. तो ये 16 बिट हार्डवेयर टाइप क्या बताता है? व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद फ्रॉम वन स्टेशन टू द अनदर स्टेशन, व्हाट टाइप ऑफ हार्डवेयर यू आर यूजिंग. क्लियर? व्हाट टाइप ऑफ केबल यू आर यूजिंग. तो अगर इफ इट इज योर लैन, अगर आप लैन यूज करते हो, तो जस्ट दे हैव गिवन वन एग्जांपल. फॉर बाय डिफॉल्ट दे हैव गिवन इथरनेट के लिए डिफॉल्ट 1 आप डालोगे. मतलब अगर आप लोगों ने इथरनेट यूज किया, तो यू आर यूजिंग द नंबर 1. तो उससे पता चलता है कि नेटवर्क को पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस while communication, what type of devices you have used, hardware you have used. Now it is your next is your protocol type. It is also having the 16 bit. ठीक है, ये protocol type क्या बताता है? Which type of IP you have used, whether it is IPv4, whether it is your IPv6, what. तो normally हम लोग IPv4 यूज करते हैं. ठीक है, तो फॉर IPv4 they have given the digit is 080016 suffix 16. ठीक है, तो प्रोटोटाइप हम लोगों ने कौन सा टाइप का प्रोटोकॉल यूज किया है, whether it is IPv4, IPv6, what. Clear? Now थर्ड इज योर हार्डवेयर लेंथ. तो अभी हम लोग, अगर आप हार्डवेयर टाइप यूज कर बोलते हो, तो उसका लेंथ भी आपको डिसाइड करना पड़ता है. ठीक है, अभी हार्डवेयर लेंथ में कैसा रहता है कि अभी इट इज ऑफ 8 बिट. ठीक है, अभी आपको हार्डवेयर, अभी आप लोगों ने, मैंने क्या बताया था, अगर आपने इथरनेट यूज किया, तो उस इथरनेट के लिए उसका लेंथ कितना रहता है? नॉर्मली द लेंथ दे हैव गिवन, इट इज द नॉर्मली इथरनेट के लिए कितना रहता है? लेंथ 6. क्यों? बिकॉज इट इज ऑफ नॉर्मली इथरनेट का जो ये रहता है हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस के लिए जो इथरनेट पे रहता है, इट इज ऑफ 6 बाइट. 6 बाइट क्या हुआ?
6 इज 48, तो 48 बाइट का आपका एड्रेस होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर लेंथ मतलब क्या होगा, अगर आप लोगों ने अगर इथरनेट यूज किया तो उसके लिए जो लेंथ रहता है, दे हैव यूज्ड द लेंथ इज 6। तो प्रोटोकॉल क्या रहता है आपका, हम लोग ऐसे यहाँ अगर आप लोगों ने IPv4 यूज किया है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा डिजिट यूज करते हो, 4। अगर IPv6 यूज करोगे तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, 6, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑफ 8 बिट, ठीक है। नाउ इट इज ऑपरेशन, यहाँ पे क्या बताया है, ऑपरेशन में क्या है, अगर आप ट्रांसमिट जो कर रहे हो वो रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है, अगर रिक्वेस्ट है एक्चुअली इट्स अ 1, ओके, रिक्वेस्ट है तो 1, रिप्लाई हुआ तो 2, ठीक है। व्हाट टाइप ऑपरेशन इट इज, कौन सा कमांड आ रहा है, ठीक है, वेदर इट्स अ रिक्वेस्ट और रिप्लाई, कौन सा पैकेट है ये या फ्रेम है, रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है, रिक्वेस्ट है तो इट इज इंडिकेटेड बाय 1, अगर इफ इट इज अ रिप्लाई यू आर इंडिकेटेड एज 2, ठीक है। नाउ इट नेक्स्ट इज दिस हार्डवेयर एड्रेस व्हिच इज अ 6 बाइट। अब ये हार्डवेयर एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस का लेंथ कितना होता है, 6 बाइट का होता है, यू नो। कॉलन के बीच में दो हेक्सा के बीच में कॉलन होता है, इट इज डिवाइडेड विद एवरी हेक्साडेसिमल, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट इज डिवाइडेड विद अ कॉलन। तो कितने थे वहां पे, 12 थे, 12 कितना हुआ, मतलब 12 हेक्साडेसिमल डिजिट, तो विच इज ऑफ 6 बाइट, तो कितना हुआ, 48 बिट का आपका इथरनेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इज हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ऑफ योर सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब क्या हुआ, आईपी एड्रेस ऑफ योर सेंडर। टारगेट हो गया डेस्टिनेशन, टारगेट मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस, तो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फिजिकल एड्रेस। एंड द टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब क्या हुआ, इज अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर ARP पैकेट। तो जब आप ARP पैकेट जब आप ट्रांसमिट करते हो तो इट रिक्वायर्स दैट मच इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल पैकेट। क्या बता रही हूँ, दैट पैकेट कैरीज दैट मच इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये चारों के चारों चीजें चाहिए, क्यों, जब आप पैकेट ट्रांसमिट करते हो उसको ये पता होना चाहिए कि सेंडर का हार्डवेयर एंड फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एंड IP एड्रेस क्या है, प्लस डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एंड IP एड्रेस क्या है। अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो डिफाइंस कि आप जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके लिए आपने कौन सा हार्डवेयर टाइप प्लस प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हो, प्लस वो ये भी बताता है कि जो ऑपरेशन आप यूज कर, जो ऑपरेशन जा रहा है वो इज वेदर इट्स अ रिक्वेस्ट और रिप्लाई। तो माय डू वन थिंग, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट के साथ सामने आई डाला, एक्चुअली इट्स अ 1, ओके। तो रिक्वेस्ट अगर है तो 1, रिप्लाई हो गया तो 2। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, नॉर्मल। Now it is visible, now it is visible, या ओके, सॉरी, ओके, मैंने क्या एक्सप्लेन किया, अब क्या आप लोगों ने बनाया था ना डायग्राम, आप लोगों ने बनाया था ना डायग्राम, जब मैंने एक्सप्लेन किया तो शायद आपको समझ में आएगा, टिल मैं फिर भी समझा देती हूँ। यहाँ पे हार्डवेयर टाइप जो बताया है, हार्डवेयर टाइप हो गया आपका किस तरह का हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो, इसमें भी इथरनेट, इसमें लैन यूज कर रहे हो, कौन सा टाइप का लैन यूज कर रहे हो, कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, क्या है, ठीक है। प्रोटोकॉल में दो तरीके का प्रोटोकॉल होता है, IPv4, IPv6, तो कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, क्लियर। हार्डवेयर लेंथ, तो हार्डवेयर लेंथ में हो गया, अगर आपने ये बताया है कि मैंने इथरनेट यूज किया, इथरनेट में भी बहुत तरीके का होता है, कोएक्सियल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है, तो इट रिक्वायर्स द लेंथ ऑफ इट। देन नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल लेंथ। तो प्रोटोकॉल अगर आपने हार्डवेयर लेंथ का क्या रह गया यहाँ पे, ओके, प्रोटोकॉल लेंथ का क्या है, नॉर्मली प्रोटोकॉल लेंथ जो IPv4 के लिए 16 होता है एंड IPv6 के लिए कितना होता है, आई थिंक 48, क्लियर। अब नेक्स्ट इज योर ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या बताया गया है, इफ इट इज अ रिक्वेस्ट यू हैव टू यूज 1 एंड इफ इट इज अ रिप्लाई द नंबर allotted by default it is a 2, clear। now next is the your sender hardware address, ये क्या बताता है कि सेंडर का हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस क्या है। नेक्स्ट इज योर सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, इट डिफाइंस दिस सेंडर्स फिजिकल IP एड्रेस। who is sharing the screen, who is sharing the screen, don't share your screen kindly, Nisha, why you are sharing your screen?
Mayuri, you left. Okay, so this is your ARP packet. Clear? Now next, move to the next. ये हो गया आपका वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड यू दिट इज रिटन हियर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हो गया हमारा। अभी कैसा है कि मैंने क्या बताया था, जो मैपिंग होती है दो तरीके का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो डायनेमिक में दो चीजें आती है, एआरपी एंड आरएआरपी। ठीक है, तो आरएआरपी अभी मैंने एआरपी कंप्लीट किया है, तो एआरपी का फुल फॉर्म क्या मैंने तो बताया नहीं आपको, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट बिट है दैट इज आरएआरपी, इट इज नोन एज रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी क्या जस्ट उल्टा काम करता है। उल्टा कैसे करेगा, अभी इसको मैक एड्रेस पता होता है बट इट डजंट नो दी आईपी एड्रेस ऑफ इट। क्या बता रही हूँ मैं अभी, क्या बताया मैंने, अभी स्टेशन को मैक एड्रेस पता है बट आईपी एड्रेस पता नहीं। वो कैसे है, वो तो अब आप आईपी एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट सबको पता होता है ना। मैक एड्रेस ठीक है, जब तक आपको दूसरा जब तक ट्रांसमिट नहीं करता हमें पता नहीं होता, बट आईपी एड्रेस तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे होता है टेल यू। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक नेटवर्क है एंड आई एम द न्यूली वन हु जस्ट नाउ एंटर्ड इन द नेटवर्क। क्या बता रही हूँ मैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल है कि मैं आई एम द होस्ट। अगर डायग्राम अगर आपको दिख रहा है, आई एम ए होस्ट। ठीक है, होस्ट, और मैं आई एम द न्यू वन जो अभी जस्ट नाउ मैंने नेटवर्क पे एंटर किया है। ठीक है, सो मेनी आर देयर स्टेशन बट आई एम द न्यूली वन। ठीक है, अब जब मैं न्यूली एंटर की तो मेरा मैक एड्रेस सर्वर को गया कि आई एम द न्यूली वन, तो किसको गया, सर्वर को, आरएआरपी को। ठीक है, बट एज आई डोंट नो द आईपी एड्रेस ऑफ माई, ठीक है, मुझे आईपी एड्रेस नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेगा, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू आरएआरपी सर्वर कि काइंडली प्रोवाइड मी वन आईपी एड्रेस बिकॉज आई एम द न्यूली एंटर्ड इन द नेटवर्क। क्या बता रही हूँ मैं आपको कि आई एम द न्यूली वन इन द नेटवर्क, सो काइंडली प्रोवाइड मी द आईपी एड्रेस, आई दिस इज माय मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या तो रिक्वेस्ट क्या करता है, तो ब्रॉडकास्ट करेगा। रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट क्या करता है कि माय फिजिकल एड्रेस इज दिस, आई एम लुकिंग फॉर माय आईपी एड्रेस। क्लियर? तो आरएआरपी क्या करता है, इट इज गोइंग टू शो, वो देखेगा कि कहाँ से आया है ये, किससे आया है, तो उस पे आईपी मैक एड्रेस दिया रहता है। मैक एड्रेस के साथ उसको पता चलता है कि होस्ट इससे आया है, तो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा एंड रिप्लाई इज अ यूनिकास्ट टाइप ऑफ। तो क्या करेगा, आईपी एड्रेस डायरेक्टली होस्ट को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, ये होस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, यहाँ पे होस्ट जो होता है वो सर्वर को बोलता है कि आई एम द न्यूली वन, काइंडली प्रोवाइड मी दी आईपी एड्रेस ऑफ माइन। जब ये आरएआरपी जब वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो क्या है, वो आईपी एड्रेस हर वो ब्रॉडकास्ट जब होता है तो वो हर एक स्टेशन के कैशे मेमोरी में वो आईपी एड्रेस स्टोर हो जाता है। बट होस्ट का मैक एड्रेस किसी के पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरएआरपी जो मैक एड्रेस जो ट्रांसमिट करता है होस्ट को, इट इज अ यूनिकास्ट टाइप ऑफ, बस उसको ही जाता है जिसने पूछा है। दैट इज वाई जब कोई दूसरा स्टेशन कम्युनिकेट करने चाहता है कि होस्ट के साथ, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल यूज करेगा। एआरपी में क्या करेगा, वो पूछेगा कि आई हैव आईपी एड्रेस ऑफ योर्स, काइंडली प्रोवाइड योर मैक एड्रेस। क्लियर? क्लियर? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? नो? ओके, नाउ ये हो गया, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, टिल देन ड्रॉ दिस डायग्राम।
over everyone, over, yes or no? Okay, okay, next move to the, दिस इज दी पैकेट फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप आपको अगर दिख रही है एवरीथिंग इज सेम, एआरपी में जो था आरएआरपी में सेम है, चेंजेस कहाँ पे है, ओनली हियर ऑपरेशन पे। अगर आरएआरपी रिक्वेस्ट है तो डिजिट इज 3, इफ इट इज आरएआरपी रिप्लाई तो योर वैल्यू इज 4, ओनली दिस मच डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ पे है, बस यहाँ पे। सो इन एग्जाम इफ दे आस्क यू अबाउट द एक्सप्लेन आरएआरपी मैकेनिज्म, तो याद रखो कि आप डिस्क्रिप्शन के साथ उसके डायग्राम के साथ ये पैकेट फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कीजिए। एवरीथिंग इज सेम, बस जब इसका पैकेट फॉर्मेट एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको, जो भी जितने भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाले हैं इस एआरपी में, सेम एक्सप्लेनेशन होगा, चेंजेस कहाँ पे होगी, ऑपरेशन पे। तो ऑपरेशन पे आप क्या बोलोगे कि अगर आरएआरपी रिक्वेस्ट है तो वैल्यू इज 3, इफ इट इज आरएआरपी रिप्लाई वैल्यू इज 4। क्लियर, क्लियर? Is it necessary to explain again? Is it necessary to explain again? Okay, see, that much I have completed this chapter today. So can anybody, कोई ऐसा कुछ है जो इस बिट पे, show you the first, I'll show you 2 minutes, कहीं पे तो लिख के रखो, okay? Okay, I'll show you. अभी this is the assignment question. तो assignment question आपको दिख रही होगी, आपको दिख रही है क्या assignment question? ओके, तो असाइनमेंट क्वेश्चन में अभी अब अगर किसी ने पूछा राइट अ शॉर्ट नोट गीगाबिट लैन, तो गीगाबिट लैन का मैंने बताया है, गीगाबिट 10 गीगाबिट लैन, गीगाबिट लैन मैंने आपको बताया है, ठीक है। 100 गीगाबिट लैन, उसका एक्सप्लेनेशन दे देना। बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम ये कहाँ पे यूज होता है, इथरनेट पे होता है, कहाँ पे 802.3 पे होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, CSMA-CD, उसी पे आप ये एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, विच कैरीज ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IEEE 802.4। IEEE 802.4 क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी IEEE 802.4? कैन एनीबॉडी टेल मी IEEE 802.4 किस तरह का नेटवर्क, किस तरह का है ये नेटवर्क? एनीवन? IEEE 802.4 token bus, okay, it's not only bus, it's a token bus, clear? Next is the explain RARP header format। तो header format अपने पैकेट फॉर्मेट देखा है, तो यहाँ पे बस क्या पूछा है, पैकेट फॉर्मेट एक्सप्लेन करो, which carries of 4 marks, जितना पूछा है उतना बोलने का, RARP एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हाँ, डेफिनेशन लिखना है तो you can write down the definition, after that you can start with पैकेट फॉर्मेट which carries of 4 marks। ओनली क्या पूछा है, पैकेट फॉर्मेट ड्रॉ करने का, पैकेट फॉर्मेट एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फील्ड। Now next is your IEEE 802.3 physical layer specification। तो ये क्या किसका पूछा है, स्टैंडर्ड इथरनेट का पूछा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इथरनेट का फिजिकल लेयर पे क्या क्या था, 10/5, 10/2, 10/T, 10/F, ठीक है, वो कैरीज ऑफ 10 मार्क्स, clear, 10 marks, clear? Next is to write a short note on megabit LAN। तो megabit LAN भी क्या आती है आपकी, फास्ट इथरनेट, अब एक्सप्लेन करने से चलेगा। कौन सा, स्टैंडर्ड इथरनेट आल्सो कम्स अंडर योर मेगाबिट, बट फास्ट इथरनेट एक्सप्लेन करो तो अच्छा है, ठीक है, बिकॉज दी एडवांस्ड ऑफ इट। नेक्स्ट क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एआरपी। तो एआरपी बोला है तो आप क्या करो, उसका प्रोसेस बताइए, डेफिनेशन डालो, प्रोसेस बताइए, पैकेट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ एआरपी रिजॉल्व्स द आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। तो वो मैंने आपको प्रोसेस एक अभी दिखाया था, डायग्राम दिखाया था, ठीक है, दिस डायग्राम यू जस्ट एक्सप्लेन हियर, which carries of 5 marks। next question क्या है, next question is explain various modes of operation in case of IEEE 802.5 token ring। तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हम लोगों ने क्या देखा था, डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन टोकन रिंग का। कैन एनीबॉडी टेल मी, टोकन रिंग का क्या देखा था हम लोगों ने, एनीवन? मोड्स ऑफ ऑपरेशन जब हम लोगों ने पैकेट फॉर्मेट में देखा था, प्रायोरिटी बीट, रिजर्वेशन बीट्स हम लोगों ने देखी थी ना, तो वो पैकेट फॉर्मेट यू कैन एक्सप्लेन योर ऑपरेशंस, वहां पे एवरीथिंग इट इज देयर गिवन देयर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 4।
So I'll give you this week. Today's Wednesday. Next Wednesday मैं आपको एक Google Classroom एक शेयर करूंगी, ठीक है? That Google Classroom पे आपको assignment complete करके roll number wise you have to upload there. Am I clear? Any query? Any query? ठीक है, तो आपको मैंने आपको स्टडी मटेरियल शेयर किया क्या सर ने? एक्सेल शीट, वेदर सर हैज शेयर्ड यू द एक्सेल शीट ऑफ द स्टडी मटेरियल? या सो देयर आई हैव ये मैंने ये पीपीटी डाला है, ये क्वेश्चंस वगैरह आप वहां पे आप लिख के आप मुझे उस गूगल क्लासरूम पे बस आप शेयर कर दीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट पे कन्वर्ट करके आप उस प्लस आप जो लिखोगे असाइनमेंट, उस असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे एटलीस्ट एवरी पेज शुड हैव योर नेम एंड रोल नंबर, एवरी पेज शुड हैव द नेम एंड रोल नंबर ऑफ योर्स। समझ में आया? तो सबका ये होना चाहिए। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंडक्ट योर चैप्टर टेस्ट 2 एज पर योर सजेशन। क्लियर? कि आपने मुझे बताया था कि मैडम ये नहीं हुआ, ये पॉइंट नहीं हुआ, ये पॉइंट नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने वही पॉइंट डाला जो आपका हुआ है, बट स्टिल आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि आपको पता है क्या नहीं। सो आफ्टर स्टडिंग डू वन थिंग, सेकेंड चैप्टर का जब टेस्ट में 2:55 को शेयर करूंगी, आई विल गिव यू 3 to 4 timing and stop at 4 o'clock it will बंद हो जाएगा and at that time विशाल, काम बोलने से पहले काम करना नहीं है, that shows your over smartness। तो आज 4 बजे बराबर से बंद होगा वो टेस्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप टेस्ट आप इतना दिमाग में रखो कि वो आप टेस्ट में अच्छा कर पाओ, because last test में you have scored hardly I think 2-0, smaller minimum इससे 0 अब बहुत लोगों को मिला and highest is 13, अमित का शायद 13 है, many आते हैं। Clear? So okay, do one thing, you mark your attendance in the chat box।